Hello everyone, I'm Jitendra Tyagi from European Education. So today I got a very good opportunity. Who is assistant professor in School of Civil and Environmental IIT Mandi. Yeah. So sir, thank you for giving us time and most welcome from European Education. Okay. Thank you for coming. We will discuss a lot of things Yes. regarding IIT Mandi, this is School of Civil, okay, and about research areas, different things. Okay. So we want some motivation from your journey. Okay. So please tell us about your details first. Okay. Sure. First of all, my full name is Thanshuimong Chaudhary. Okay, sir. So I'm from northeastern states. Which state, sir? I'm from Tripura. Tripura. There is also I belong to one of the tribal community called Mok. Oh, So great. there we have a typical name. The Thanshuimong is that name. So I'm Nice. from that place. Okay. So for a common people, this is very much remote and much extreme to that area, and I'm here in the other, exactly the other side in our country. Yes. Yeah. So I, as being in remote, I started my school journey from a very remote places, a small school. We hardly have any kind of expert teacher to teach us anything like that. But then I believe that if your motivation is strong, if you are very much curious to know since childhood, so that will give you that will eventually make a path for your in future Yes, career. yes, sure. And then I came to Agartala for my for my high school, and after that somehow if you are curious, among of your friends you will come to know that some exam is going on, something is going on. So in 2001 I came to know that some exam is there called NERIST entrance exam. So somehow I was, because of my curiosity, I kept on looking into it and I gave that exam. And because of my basics on I was very much interested in this science, mathematics and physics, so I could clear that exam without much hurdle. Great. Then I joined NERIST. NERIST stands for Northeastern Regional Institute of Science and Technology. It is in Arunachal Pradesh. Okay. So there I have spent for 6 years. I have done both these 12 equivalent and then diploma and degree. It's a 6 years So integrated this is course. a university or some college? Or? It's a central government university. Okay. So then after that, even there the study pattern was kind of like very challenging, Even for 0.01 CGPA, if you don't meet that, you can be chopped out. So we always have to, we have to make up that marks to, to maintain ourselves. So luckily I have managed to maintain that. So then during that time, I saw my friends are very much eager talking about IITs, GATE, we have to exam. So okay, why not, let us try. Then during some cultural fest, we used to visit, the IITs used to organize some of the best cultural festivals. Yes. So that time we became curious, chalo IIT dekhte hain kaisa hai, So then during that time I visited IIT Guwahati. Looking at IIT, it was wow, this is the kind of institute where we want to come. So that was the first instinct I felt, that I want to visit an IIT. So then I became very much interested. Yes. Then I have studied for some time, like a few months. I think I prepared for 6 months for GATE, and luckily I got through and I joined for master's degree in IIT Guwahati. And I liked that place so much that I continued PhD there Okay. itself. So your master's was in civil or another branch? No, my master's is in structural engineering. It's a part of civil engineering yes. course. And then I have continued my master's also from that. And during my period of research under Erasmus Mundus Heritage Fellowship Program, I happened to visit to Italy at Politecnico di Milano. There I have spent another like 10 months, 7 to 10 months time. And then I have done part of my research there. And then that has tremendously helped me in understanding more other dimensions, in research. And then that has actually in kind of like a boosting thing. Your PhD thesis was on what topic? My research was mostly on masonry and retrofitting. Okay. Now when you talk about masonry, it becomes like यार पुराना चीज है. हर कोई आजकल तो we are talking about modern architecture, like RCC buildings, steel buildings.
Masonry don't talk much about, but then I became curious. Let us look into it, because all the traditional structures, our ancient heritage structures, even Yes. those buildings more than 40-50 years old where we are still living, they are all masonry structures. Yes. So I started my investigation from there, and then in my due courses of research, now I became more curious to work on dry stack masonry. Means when we talk dry stack masonry, means why should I use mortar? If I want to construct a building in one day, then I don't have to wait for months. Yes. Because if I use cement, mortar, I have to prepare, I have to wait for some time to make my building ready. So let's say if I make my brick in such a way that I will stack one over the another in a very short time, maybe in a day, I'll have my building ready. Great. Why should I wait for 3D printing things? Yes. So that is one way I am looking forward. Alternatively, for example, we are in Himachal Pradesh, it is very cold, and even this traditional structure solid, in this case, even this cold, it is very difficult to retain the heat. So alternatively, now my other plan is, now we are trying to develop a thermal efficient brick blocks, and that also we can construct in very cold climate areas. Okay, so that is important point. Yeah, That is the research area in which there is scope huge scope for students. Yes, huge scope. And thirdly, let's say, now when we talk about building, you cannot imagine without using steel, right? Yes. So we have to buy steel, we have to spend a huge amount of money. Alternative thing is, can we stop using steel? If we alter geometry in such a way that can we stop can we alter it? So that is my theme area now, which we are trying to work, and we call it modern masonry. To construct our structure in such a way that I will stop everything using, and we will have a very wonderful structure with a good architectural shape. So those things. After completing your PhD, Yeah. you went for postdoc also? No, I didn't. Luckily, because I have spent good amount of time in my research, and because of that, I didn't have to wait much for the postdoc. I got into IIT Mandi. So this is your first job here, or you have worked with some other institute also? Earlier, I worked for a very short time at SRM University, Andhra Pradesh. Okay, Then I immediately came here after. great. So 7 months ago you joined here. Yes. So many congratulations. Thank you. For this nice place joining. Yeah, it's a beautiful place. Yeah. So sir, right now, if we talk about IIT Mandi, Yeah. okay. Yeah. So civil students, if we talk about civil students or anyone who is related with civil engineering or associated branches. Okay. So according to you, why such people should look for IIT Mandi and then this School of Civil and Environmental Engineering? See, there are two most important aspects. One is that the scenic beauty that we have it here. Yes. We always want to go to Kullu, Manali, all that kind of things. You are in the midst of that, beauty. So that is one thing that will attract most of the people, the beauty of this place. And talking about the quality of faculty, we have excellent faculty here. In every faculty excel in their own way, and we are very young and dynamic one. So the student has every chances to interact with the faculty. We have the curriculum is so robust and so very open that even a civil engineering student who has joined can work in IT or in electronics or computer science or in artificial intelligence, something like that. We have such courses and projects is there. Even from second year we have those kind of chances are there. Even they can opt for electives that will help them. So it is very much like flexible. Student has every chances to use it. They want to explore in other areas. This is one thing I will say. Alternatively, every IITs, they have their own specialization. No doubt about that. Every civil engineering department is special. However, talking about our IIT Mandi, we have School of Civil and Environmental Engineering. We are very much focused with the sustainability and environmental impact, because we are in a very fragile environmental, it is particularly in the Himalayan belt. So in everything, whatever we are practically, we are very much conscious about it. So that is whatever, even be it building I want to construct, be it road I want to construct. So
once a student from a base, when we are trying to teach the importance of a climate changes, the importance of this circular economy, and the importance of this our how we can sustainability part. So when we take care, the students are getting more knowledge in this, and this they are going to use it practically when they are going to work in the field. So you talked about that students are getting flexibility Yes. in choosing their different areas. Yes. And nowadays we see that artificial intelligence, machine learning, data science, all these things are very common. Yes. So if there is some student who want to work in civil engineering, but he want to use some AI. Yes. So what is the scope and how it is possible? In what areas? We even has several experts here. Like even you will be interacting, I hope, with some of our faculties, like Dr. Uday, and then we have other faculties as well. So they are working. They are applying like this the role of machine learning and artificial intelligence in predicting, for example, landslides, predicting the health monitoring of the buildings. Like Dr. Shubham and he is working in that area. So the the role of artificial intelligence and AI is huge even in civil these days. And even any kind of company, those who know that you have this exposure and know how to use it in civil, any company will it will grab you in a very good companies. Yes. So, sir, from your side, any technical questions? Hi sir, Yeah. Dr. T. Chaudhary looks very young. So सर एक्चुअली क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स का एम होता है कि प्लस टू के बाद हमें आईटी में जाना है, वी वांट टू गो आईटी एंड फील दैट एनवायरनमेंट, Yeah. बट अनलकीली दे डोंट गेट आईटी. ठीक है. सो आफ्टर दैट दे थिंक दैट नाउ बीटेक कर लेते हैं 4 साल बाद, आफ्टर दैट वील डू एम टेक इन आईआईटी, आफ्टर बाय गेट के थ्रू हम एम टेक करते हैं. सो आईआईटी मंडी स्पेशलाइज एज यू सेड कि एवरी स्ट्रीम जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो हर एक में हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं. सो जैसे आपने अभी बताया कि आप मेसनरी के अंदर आपने पीएचडी किया हुआ है. सो अभी होता है क्या है कि जब हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर जो बीएमसी हम पढ़ते हैं बीटेक के अंदर बिल्डिंग मटेरियल्स, तो लाइक इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, लाइक बोरिंग सब्जेक्ट्स. अब इस केस में अगर हम स्टूडेंट्स को बताएं कि नहीं, इट्स अ ह्यूज स्कोप इन फ्यूचर, सो जस्ट उसके बारे में थोड़ा आपको बताइएगा कैसे हम एक स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल, इट्स अ वेरी ह्यूज. अभी दो चीज़ है. अभी एक होता है कि मैं तो ये बोलूँगा कि हमारा जो डॉक्टर कौस्तुभ सरकार है, अभी वो स्टूडेंट अभी डॉक्टर कौस्तुभ सर का क्लास नहीं किए हैं. ही इज सच ए वंडरफुल टीचर. तो एक स्टूडेंट जब उसमें उसका क्लास को अटेंड करने लगेगा एंड द वे ही विल एक्सप्लेन, तब लगेगा यार what he will talk more about practicality. Even I will to do that. Every one of us will do that. कि भाई हम क्यों सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाएं. थ्योरेटिकल में है क्या, थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन सब प्रैक्टिस. तो जब हम एक प्रैक्टिकलिटी चीज़ को जब हम लेके बताएंगे या दिखाएंगे उसको, एंड स्टूडेंट, भाई अभी भी मैं जब क्लास में जाता हूँ, आई डोंट लेट माई स्टूडेंट्स टू ओपन एनी बुक. फर्स्ट यू लिसन, अंडरस्टैंड, एंड यू रीड एनी बुक यू वांट. We enjoy like a interactive session. जैसे मैं ये नहीं कि मैं आ गया आप नोट लिखो, ये बुक से पढ़ाओ. We don't do that. मतलब टेस्ट, लैब टेस्ट मोस्टली हर एक जितनी भी एक्सपेरिमेंट, लाइक सीमेंट की टेस्टिंग है, ब्रिक्स की टेस्टिंग है. We will share, या तो हम खुद से कुछ प्रैक्टिकल होगा तो we will share that. We will share some videos. Either we'll take for some side excursions. Okay. या तो we'll mostly make it more like the practical approach. Okay. And so that students can understand what it is mean for. या और एंड सेकेंडली सर कि अगर स्टूडेंट मोटिवेट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोई एमटेक करना चाहता है आईआईटी मंडी से, सो एक होता है कि यार आईआईटी मंडी क्या चाहती है हमसे, कि ताकि हम आईआईटी मंडी के अंदर एंटर कर सके, वो क्या चीज़ है जो हम स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं. देखिए, पहला चीज़ है मोटिवेशन. ओके. ठीक है. अभी मेरे पास एक मेल आया है. Okay. Student has mailed, sir, I saw your advertisement for masters in research program, but I am confused. Should I take this course, or whether can I take this course or not? अब ये चीज़ होता है. फर्स्ट व्हाट आई वांट टू सी इज द हाउ मोटिवेट यू आर टू परस्यू दिस. अब ऐसा नहीं कि आप आए हो फॉर जस्ट यू नीड अ डिग्री, देन दिस इज नॉट फॉर यू. बी इट फ्रॉम इन द फील्ड ऑफ रिसर्च
बी इट इन द फील्ड ऑफ लाइक, आप जब जैसे आप आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, चाहे रिसर्च के लिए हो चाहे आप रेगुलर कोर्स कहीं भी, यू नीड टू नो दैट व्हाई आई एम डूइंग इट, यू नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। कभी कभी ये जरूरत नहीं होता कि हर जगह में आएगा एवरी फैकल्टी इज एन एक्सपर्ट या वो अच्छा पढ़ाएगा, ये जरूरत नहीं है। कभी कभी आप खुद को एक्सप्लोर करना पड़ता है। सेल्फ मोटिवेटिंग आना जरूरी है। बिल्कुल, हम रिसर्च का नाम होता है रिसर्च, यू आर सर्चिंग अगेन, सर्चिंग अगेन, यस। तो आपके पास सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। सर, इज देयर any kind of, we can say ki yeah, this is a department or this is any particular area that you should go for research in that area, is there any like future में scope हो जिसका ज्यादा? हर फील्ड में स्कोप है, हर फील्ड में, हर फील्ड में स्कोप, तो मतलब स्टूडेंट कैन गो एनीवेयर। एनीवेयर। अब देखो हमारा अभी हर जगह जैसे आप ऐसे यूनिवर्सिटी ऐसा होल हर जगह में देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस या आईटी में फैकल्टी का थोड़ा कमी होता है। आप देखिए न्यूज़पेपर में कहीं पे भी देखेंगे सेम चीज़। हमारा सिविल में भी ऐसे हर स्पेशल, कभी कभी हमको लगता है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में स्टूडेंट फैकल्टी हमको हमारे पास कम है, हमको ज़्यादा फैकल्टी चाहिए, या कभी इन्वायरमेंटल का चाहिए, या तो स्ट्रक्चर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या दूसरा कोई जो नया टॉपिक जैसे बायोमैकेनिक्स हो गया, या तो कोई इमर्जिंग एरियाज हो गया, उसमें एक्सपर्ट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। जिसको भी स्टील में चाहिए होता है, तो हर स्पेशलाइजेशन हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, हैज़ इट्स ओन चार्म एंड हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। Sir, you will be guiding some students who will join this Yes. year or Yeah, next yeah, year. already MTech, we have several as- MTech research program or Yes. MTech program. Sure. So, can you tell us some list of important projects on which you are currently working, in which you need good students, motivated students? यस, जैसे अभी मेरा अभी एक हर टॉपिक इज लाइक समथिंग लाइक वेरी काइंड ऑफ लाइक वेरी न्यू, एंड ऐसा यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट समथिंग वेरी रेडीमेड, यू शुड बी रेडी टू फेस चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि मॉडर्न मेशनरी, यू हैव टू स्टडी द स्ट्रेंथ थ्रू ज्योमेट्री। आपको ज्योमेट्री ऐसे स्टडी करना है ताकि इसमें मेरा स्ट्रेंथ हो जाए, तभी मेरा कोई टेंशन ना आए। तो वो जो फॉर्म को स्टडी करना, दैट इज अ चैलेंजिंग पार्ट। So I need very much those very motivated students who are ready to take that challenge. Secondly, to study the shape, size of bricks for quick construction process. आजकल अभी भी हम लोग कहीं जगह में जैसे कोई लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पे कोई डिजास्टर हो गया, मुझे रैपिडली एक स्ट्रक्चर बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो ऐसा क्या प्रोसेस हम लोग बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं। तो ऐसा चीज़ें हैं जो हमको चाहिए कि आई नीड मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। फिर हमारा एंशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, अभी तक कोई प्रॉपर स्टडी नहीं हुआ है। हमारा जो 100-200 साल, 300 साल, 500 साल, हज़ारों साल, जो साउथ में बहुत सारे मंदिर हैं, हाँ, टेम्पल्स हैं, तो जो अभी भी खड़ा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वी नीड टू स्टडी दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ दे वर कंस्ट्रक्टेड, व्हाट वाज देन दैट टेक्नोलॉजी दैट्स बीन यूज्ड, या कोई मटेरियल प्रॉपर्टीज हो। सो आई नीड दोस काइंड ऑफ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हु आर रेडी टू एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ एरियाज। सो उनके अंदर अगर हम जैसे कि ये तो उनका इंटरेस्ट हो गया एंड आप इसमें काम करेंगे, ठीक है, बट उनकी अगर हम टेक्निकल स्किल्स या सब्जेक्ट की नॉलेज अगर वो भी कहीं ना कहीं टेस्ट करनी होती है, बिकॉज केवल इतना कहने से तो काम नहीं चलेगा कि मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, उसकी टेस्टिंग भी करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेस्टिंग के क्या क्या पैरामीटर्स अब होंगे? जैसे देखिए, हम स्ट्रक्चर्स में अगर हम करेंगे तो बेसिक जो हम बीटेक में जो इसका रिलेटेड जो टॉपिक फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, strength of materials, structure, introduction to structural dynamics, at least basics, a little bit exposure to programming, yes, to some softwares. I'm not expecting they should be very expert. At least the basic knowledge of this is prerequisite. So programming में कौन कौन सी लैंग्वेज आप अलाउ करते हैं? Normally MATLAB इस हम लोग यूनिवर्सली हम लोग सब लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। एल्स पाइथन भी अच्छी आजकल नया ट्रेंड है जो इसको पाइथन, सो एनीथिंग। तो सिविल में भी पाइथन यूज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल यूज हो सकता है। वो तो भाई जस्ट प्रोग्रामिंग है, एंड वी विल गिव यू द प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू सॉल्व इट। सो आपने कोई प्रॉब्लम अभी तक सोल्व ऐसी की है जिसमें कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का आपने यूज़ किया हो अपने किसी प्रोजेक्ट में, या आपके स्टूडेंट्स ने जो आपके अंडर में? अभी तक मैं ML या AI में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा अदर कलीग्स है, वो लोग काम कर रहे हैं। तो और आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब अपने करंट वर्क्स के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में?
अभी आगे में ऑफ कोर्स मैं एक और चीज़ है, जैसे हम लोग मैं फ्यूचर देखूंगा कि हम लोग 3D प्रिंटिंग में भी काम करूं, जो हम लोग इन रैपिड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस या ऑल्टरनेटिव ज्योमेट्री पे काम करें। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव रिट्रोफिटिंग स्ट्रेटजीज, जैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को किस तरह से और मजबूती दिया जाए, तो उसको हम लोग स्टडी करना का वो मेरा प्लान है इन फ्यूचर इन डिटेल्स। अभी मैंने स्टील में काम किया हूँ, आगे हम लोग ऑल्टरनेटिव और भी क्या क्या कर सकते हैं वो हमारा प्लान है। अभी प्लान तो बहुत कुछ है, अभी देखते हैं। अच्छा सर, जैसे आपके अंडर में मतलब आपके साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एमटेक रिसर्च किया, ठीक है, यहाँ से उन्होंने कर लिया एंड नाउ दे वांट टू गो अब्रॉड, बिल्कुल ठीक है, कि और ज़्यादा थोड़ा बाहर का एक्सपोजर लिया जाए, क्योंकि आईआईटी मंडी में उन्होंने 2 और 3 इयर्स पास किए हैं, अच्छा वर्क किया है। तो डू यू हैव सम रिकमेंडेशंस, सम प्रोफेसर, सम यूनिवर्सिटीज वेयर यू हैव सम कोलैबोरेशन? यस, ऑब्वियसली वी हैव। हम अगर बेस्ड ऑन हिज वर्क एंड वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, विल डेफिनेटली रिकमेंड टू सम गुड यूनिवर्सिटीज इन बोथ यूरोप एंड यूएस और इन अदर रेपुटेड यूनिवर्सिटीज। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑफ कोर्स ये तो हम करेंगे ही अपना स्टूडेंट के लिए। इवन नॉट ओनली दैट, इवन जो मास्टर्स के टाइम में अगर वो कोई कहीं पे ट्रेनिंग करना चाहे तो विल आल्सो असिस्ट देम इन डूइंग। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, जैसे सिविल का बच्चा है, सिविल में गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब यहाँ पे इस पर्पज से आते हैं कि प्लेसमेंट तो होगा नहीं, ठीक है, सिविल में, और मैं गवर्नमेंट जॉब की वहाँ पे रह के तैयारी कर लूंगा। ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आइडिया रहते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ वो तो रहता ही है। तो आप उनको मतलब ये कैसे रियलाइज कराएंगे कि यहाँ प्लेसमेंट्स हैं, अगर मतलब ऑनेस्टी से वर्क करेंगे वो, तो मतलब अदर देन गवर्नमेंट जॉब इंडस्ट्रीज में भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर वो काम करेंगे। नहीं, एक चीज़ है कि अगर हमारा प्लेसमेंट प्रोफाइल देखेंगे कि हमारा प्लेसमेंट अच्छा ही है, तो एक चीज़ है कि इफ़ यू मतलब आई डोंट वांट टू, मतलब इसमें ये प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी क्या है, सी यू आर कमिंग हियर, इफ़ यू डू वेल डेफिनेटली यू कैन गेट अ जॉब। देयर आर 3 थिंग्स। एक होता है, एक सेक्टर होता है कि यार आई वांट टू हैव अ सेफ सेफ काइंड ऑफ जॉब, तो वो लोग सरकारी नौकरी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स दे वांट टू गो। आई विल नॉट डिस्करेज, डेफिनेटली जिसका जो अच्छा लगता है, फिर मोटिवेटेड जाना चाहिए। वी नीड ऑल्सो पीपल, गुड स्टूडेंट, गुड पीपल इन आवर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तभी तो जाकर हमारा अच्छा गवर्नेंस हो सकता है, गवर्नेंस। ऑल्टरनेटिवली कंपनीज भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज हैं एंड दे आर गिविंग ए वेरी गुड पैकेज। इनिशियली भले ही इनिशियली इसका पैकेज थोड़ा कम हो सकता है, व्हेन यू कंपेयर विद योर कंप्यूटर साइंस या अदर ब्रांचेस, कम हो सकता है, बट आप जब इसका जो रैपिड आप देखोगे फॉर लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स, इनका एक्सपोनेंशियली इसका फिर ग्रोथ हो जाता है। बिल्कुल। सो ये तो इलेक्ट्रिकल में भी, सिविल में भी, एंड रिसर्च इज समथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, यू नीड टू बी रियली हैव अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन फॉर रिसर्च। ये चीज़ हम लोग अक्सर गलती करते हैं एक्चुअली, जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट लोग कभी कभी आते हैं रिसर्च करना है एंड बीच में फंस जाता है, दे बिकम वेरी डिप्रेस्ड आफ्टर 1 year 2 years बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो रेडी नहीं है मेंटली। अच्छा, डायरेक्ट पीएचडी का भी ऑप्शन यहाँ पे है सिविल में, बीटेक के बाद? है। तो वो जो डायरेक्ट पीएचडी होता है, बीटेक की डिग्री उसके पास है, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लिया, तो उसको डिग्री कौन सी मिलेगी? सिर्फ डायरेक्ट पीएचडी में वो बीटेक भी मिलेगा, पीएचडी मतलब नहीं, बीटेक तो है ऑलरेडी कहीं से, तो पीएचडी मिलेगा उसको, मास्टर्स का नहीं मिलेगा ना? मास्टर्स का नहीं मिलेगा। नहीं, अगर जॉइन मास्टर्स, जब जैसे ही इज डूइंग मास्टर्स आफ्टर कंप्लीटिंग, लाइक एट द एंड ऑफ कंप्लीटिंग मास्टर्स ही वांट्स टू कन्वर्ट इट टू पीएचडी। नहीं, एक आजकल क्या है कि डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन होता है। हाँ, होता है कि बीटेक में आपका 75% मार्क्स है, तो मास्टर्स का नहीं स्कोर है, डायरेक्ट पीएचडी मिलेगा। अच्छा, तो डायरेक्ट पीएचडी मिला। हाँ, उसका यूज एकेडमिक्स में मतलब अगर करना है, जैसे आईआईटीज में ही प्रोफेसर बनने के लिए उसको अगर ट्राई करना है, तो कोई डिफिकल्टी आती है उसमें या एलिजिबल है सभी जगह? ही इज एलिजिबल, सेम प्रोसेस है। मतलब ये तो नहीं कि मास्टर्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट प्री रिक्विजिट, और ऑलरेडी अगर उसका अच्छा है तो ही शुड हैव अ गुड पेपर। काम से मतलब है, काम अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी आईआईटी में जब जाएगा तो हम लोग पूछते हैं व्हाट इज द नोवेल्टी ऑफ योर वर्क, तो आपका वर्क अगर काम अच्छा किए हैं, अच्छा पेपर निकाला है, तो डेफिनेटली एवरी आईटी वांट्स अ गुड फैकल्टी। और अगर मान लिया कोई बच्चा डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले लेता है,
ठीक है, मतलब रियल वो सिचुएशन जैसे, और 2 साल 3 साल उसने यहाँ पे लगाए, बट उसके बाद वो बोलता है कि मतलब वो नहीं कर पा रहा है उतना अच्छा जो उसके टारगेट्स हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। 3 साल उसको हो गए, तो क्या ऐसा प्रोविजन मतलब कुछ होता है कि हाँ कुछ रेयर केसेस में उनको मास्टर्स भी अलाउ कर दिया जाता है फिर ये बीच में, मतलब ये रूल तो कोई नहीं आता ऐसा clear? तो मैंने एज फार एज आई नो देर इज़ नो एनीथिंग एज सच, बट या तो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, और ये तो एक्चुअली वी विल ट्राई एज मच एज इट्स रेस्पॉन्स ऑफ द गाइड हु टेक्स। सो हम लोग ये हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उसको कैसे मोटिवेट करना, उसका इमोशनल सपोर्ट देना, उसको मेंटली सपोर्ट देना, तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गाइड। वी विल मेक श्योर दैट ही डोंट डू दैट। कैसे सर मोटिवेट करते हो, अगर थोड़ा सा आइडिया बताओ, मतलब क्या क्या चीज़ आप बताते हो स्टूडेंट्स को कि ये थोड़ा मोटिवेट हो जाए? ये तो हर स्टूडेंट का केस टू केस बेसिस है। So why पर्सनल डिस्कशन why he is not happy, what makes him upset, what makes him lag behind, तो उसको देख के हम लोग और सर समटाइम्स कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमसे मिलते हैं, वो करते हैं कि बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए आईआईटी में आ जाते हैं, 1 साल करते हैं, उसके बाद वो तैयारी करने के लिए चले जाते हैं यूपीएससी की, या वो आते हैं एमटेक में कि चलो ठीक है घर वालों से पैसे नहीं लेने हैं, स्टाइपेंड मिलता है ये MTech तो करने अभी बहुत एक्चुअली एक क्रिटिकल केस है। तो इस केस में अगर हम स्टूडेंट को आईआईटी के अंदर रखना चाहिए, बिकॉज या तो वो चाहते ही सिर्फ हम गवर्नमेंट में ही जाना चाहते हैं, हम इस प्राइवेट कंपनी में नहीं जाना चाहते, या उनके माइंड में ऐसा कि यार प्राइवेट में कोई स्कोप नहीं है लाइक दैट, कि ऐसा ये बहुत बड़ा एक्चुअली ये दिस इज अ वेरी यू नो काइंड ऑफ लाइक गैम्बलिंग। आप इट इज़ यू नो द स्टूडेंट्स बहुत सारे इवन के आईआईटी दिल्ली में जैसे मोस्टली इसे ही करने के लिए जाते हैं, उसके बाद ही उसी बहाने में इतना सारे कोचिंग सेंटर खोला था। तो हम लोग ये कह नहीं सकते एक्चुअली, स्टूडेंट कोई बताता ही नहीं है, या हम लोग कोशिश होता है कि अपना बेस्ट दूं, अभी वो उसका भी अपना मर्जी है, उसका भी अपना एक प्लान है, तो वी कैन नॉट स्टॉप दैट ऑल्सो, तो लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। ठीक ये तो चलता रहेगा, चलता बट हाँ एक चीज़ है, एज ए फैकल्टी आवर मोटो इज टू मेंटेन एज ए फ्रेंड, ए फिलोसोफर एंड अ गाइड। ये 3 रोल हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला सर लास्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइड एक मतलब पेरेंट गार्जियन की तरह ही है। हाँ तो गाइड और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं, हाँ और सारी फैकल्टीज जो भी अपने मतलब स्टूडेंट्स उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज करें और उससे मतलब जो काम लेना है वो लें, तो इससे बहुत अच्छा मतलब ये इम्प्रूवमेंट होगा रिसर्च के एक्टिविटीज़ में, और स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके अंदर जो ये नेचर मैंने इस डिस्कशन में पाया है आपका, कि बहुत सपोर्टिव आप रहेंगे मेरे हिसाब से अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं सिविल से रिलेटेड, आप लोग नोट कर लीजिए, सर की प्रोफाइल चेक कीजिए, ठीक है, आईआईटी मंडी की वेबसाइट पे। और एक सर, अगर आपको लग रहा है कि जो सर ने रिसर्च एरियाज बताए हैं आप उसमें इंटरेस्ट आपका है, तो आपको सर को कांटेक्ट करना चाहिए बाया ईमेल। आप सर को कॉल कर सकते हैं और अपना एक सीवी, अपनी डिटेल्स सर को भेजिए, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, और लेकिन ऑनेस्टी के साथ में, मतलब आपका मोटिवेशन होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए बस एंट्री मार दूं मैं, ठीक है, नहीं उस तरीके से नहीं, रियल में अगर आपको कुछ करना है तो फुल सपोर्ट आपको सर की तरफ से मिलेगा स्टूडेंट्स को। ये इस पूरे कंक्लूजन से, मतलब डिस्कशन से कंक्लूजन मेरा निकला है अपना। यस तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ में डिस्कस करके, एंड वी नीड सच मोर एंड मोर प्रोफेसर्स इन ऑल आईआईटीज। देयर आर एक्चुअली दे आर आवर मोटिवेटर्स। इन्होंने हम लोग को मोटिवेट किया, इसलिए हम लोग वैसे बन पाए। यस सर। ओके, सो थैंक यू ऑल। ओके, इट वाज वेरी नाइस।